Hello, dear students. Welcome back to day 29 of our daily 5 study question series. आज हम हेरिडिटी चैप्टर के कुछ और स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म whether reproduce asexually or sexually, maintain a constant chromosome number through several generations. Explain with the help of suitable example. In sexually reproducing organism, the parents are diploid. 2n as each of them has two sets of chromosomes. They have haploid yani 1n male and female gametes. Through the process of meiosis, the haploid gametes has one set of chromosomes. Since these gametes fuse during fertilization, the original number of chromosome is restored in the offspring. बेटा जी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की बॉडी में कैसे होते हैं? डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं और एट द टाइम ऑफ गैमीट्स वो कैसे बन जाते हैं? हैप्लॉइड। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये दोबारा से कैसे हो जाते हैं? डिप्लॉइड हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो रिस्टोर्ड रहते हैं। एंड इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म only one parent is involved. The part of the body which develop into a new organism contains cells having same number of chromosomes as any other cell in the body of the organism. This separated part only develops into a new organism, yani no meiosis take place. Question number 2. Name the two types of gametes produced by men. बेटा men की body में कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स? सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। इट मीन्स मैन की बॉडी में जब गैमेट्स बनते हैं तो टू टाइप्स के स्पर्म्स बनते हैं, एक 50% कैरिंग एक्स क्रोमोसोम एंड 50% कैरिंग वाई क्रोमोसोम, यानी टू टाइप्स गैमेट्स बन गए। Does a male child inherit X chromosome from his father? Justify. No, male child does not inherit X chromosome from his father. Human has 23 pairs of chromosome, out of which one pair of sex chromosome and 22 pairs are autosomes. Women have a Women have a perfect pair of sex chromosome, both called X, but men have a mismatched pair, out of which X is normal size and Y is shorter sex chromosome. So women have XX and men have XY chromosome. A male child inherit a Y chromosome from his father and X chromosome from his mother. जैसे कि फिगर में देखिए शोन है, ये दोनों मदर के जो है ये हमारे किसके हैं? मदर के हैं दोनों, और ये फादर के हैं। तो बॉयज को जो मेल को वाइक्स क्रोमोसोम किससे मिल रहा है? मदर, ये मदर से मिल रहा है सीधा, राइट। सी पार्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय अ ह्यूमन फीमेल? बेटा ह्यूमन फीमेल में एक ही टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ओनली एक्स, है ना। जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उनके पास सिर्फ क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज F2 जनरेशन? Why such traits, intelligence and knowledge cannot be passed on to the next generation? C part, the sex of the children is determined by what they inherit from his father and not their mother. Justify. तो बेटा A part, the generation produced by the offspring to F1 generation, यानी first generation as parent is called the F2 जनरेशन। दो पेरेंट्स से पहले जनरेशन हुई बेटा वो F1 हुई। पहले पेरेंट्स हम जो है पहले क्या शो करते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो पहली जनरेशन आती है उसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन से जो जनरेशन दूसरी आती है उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। नाउ सेकंड बी पार्ट, बेटा जी ट्रेट सच एज इंटेलिजेंस एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड ट्रेट्स व्हिच डू नॉट bring any change in the DNA or the germ cells and therefore cannot be passed to the next generation. And C1 is, it is because a child who inherits an X chromosome from father will be a girl and one who inherits a Y chromosome from father will be a boy. But all children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boy or girl. Question number 4. Two pea plant है हमारे, one with round yellow seeds, R capital R capital R capital Y capital Y, and another with wrinkled seed or
रिंकल्ड सीड और ग्रीन, रिंकल्ड का हो गया स्मॉल आर और ग्रीन का हो गया स्मॉल वाई सीड्स, प्रोड्यूस F1 जनरेशन सारी कैसी होगी बेटा, राउंड एंड येलो, यानी कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। व्हेन F1 plants are self-pollinated, which new combinations of character is expected to F2 progeny? How many seeds with these new combinations of character will be produced when a total 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with region. बेटा F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। इसमें जो हमारे 3:3:2 वाले होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये जो दोनों है ये हमारे होते हैं न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन मींस हमारे जो पेरेंट थे राउंड और येलो थे और रिंकल्ड और ग्रीन थे, तो राउंड के साथ ग्रीन चला जाएगा और येलो जाएगा रिंकल्ड के साथ, रिंकल्ड के साथ येलो चला जाएगा, यानी ये राउंड एंड ग्रीन एक साथ आ जाएंगे और रिंकल्ड और येलो एक साथ आ जाएंगे। अब कितने बनेंगे न्यू कॉम्बिनेशंस बेटा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल हमारे 160 सीड है और ये हमारा इन चारों का एडिशन कितना हो गया बेटा 16, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 3 इंटू 160/16 इज इक्वल टू 30, यानी राउंड के साथ क्या गया ग्रीन के कितने हो गए 30, रिंकल के साथ येलो भी कितने हो गए 30। न्यू कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस, किस लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा जी, बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड सीड कलेक्टर के लिए। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट traits may be dominant or recessive or traits may be inherited independently? ये दोनों हमें शो करना है कि मेंडल ने कैसे बताया। बच्चा जी, मेंडल used a number of visible contrasting pair of characters in the garden pea such as round and wrinkled seed, ये एक हमारा वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर हो गया, या हमारा टॉल एंड शॉर्ट स्टेम, थर्ड इसमें है वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर, तीसरी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट शेप एंड कलर ऑफ दी सीड्स। दो करेक्टर लेना है, यानी हमें डोमिनेंट रिसेसिव हम दोनों में शो कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी और डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी, बट इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली हमें क्या करना होगा बेटा, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाना होगा। तो पहला पार्ट ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ visible contrasting pair of character in the garden pea. He made crosses between pea plant with different characters. There were no halfway or intermediate characters. क्या हुआ, only one of the parental traits appear in the F1 generation. तो जो भी F1 generation में show हो गई उसको उन्होंने क्या कहा, it is called dominant trait, and trait which remains hidden is called recessive trait. When F1 plants were self-pollinated in F2 progeny consist of plants with the dominant trait and recessive trait in the ratio of 3:1. It proves that traits may be dominant or recessive. अब secondly है traits are inherited independently. When a cross is made between a tall and round seeds, दो करेक्टर लिए हैं tall and round है, एक tall short और एक round and wrinkled. With a short plant with wrinkled seed, the F1 progeny will show all tall and round, यानी हमारा क्या शो होगा बेटा, डोमिनेंट करेक्टर शो होगा। जब हमने F1 प्रोजेनी को क्या करा बेटा, F1 के प्लांट्स को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया, तो क्या हुआ, The F1 progeny को self pollinated करवाने के बाद F2 progeny consisted of some tall plants with round seeds and some short plants with wrinkled seeds. These two are the parental combination. लेकिन इन parental combination के साथ साथ हमें tall और wrinkled seed भी दिखाई दिए और short के साथ हमें round seed भी corrector visible हुआ। यानी ये क्लियर करता है कि tall, short, राउंड और रिंकल सब क्या होता है, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली होते हैं। इसके संग हमें क्रॉस बना के दिखाना जरूरी है बेटा। देखिए हमने क्रॉस भी दिखाया है, राउंड आर आर वाई वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखिए हमारे फर्स्ट जनरेशन सारे राउंड एंड येलो, एंड सेकंड जनरेशन में हमारा 9:3:3:1 का रेशियो आया। ठीक है, ग्रेट जॉब। डे 29 भी कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं हेरिडिटी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।